To all of you, myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss 20 MCQ questions on administration and finance. It is my series 8. And in this series, most attraction is Child Educational Allowance CEA and Child Care Leave CCL. So my friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel Asit Government Rule Guru so that you can get notification for my upcoming videos. Also another information, in my video description box you can get one link. It is related to the Telegram group link. You click on the link and join the Telegram group Government Rule Guru Asit so that you can get all the videos. Definitely this video would be exciting for you. You know that two examinations are around the corner. One is the UPSC principal exam and another one Ekalabya Model Residential School principal exam. And also these MCQs would be very useful for you KVS and NVS principal exams and other state board principal exams. So my friends, please subscribe my channel Asit Government Rule Guru, and in my description box also Telegram link is there. You click on it and join the group Government Rule Guru Asit so that you can get all the videos. Now I am going to start the MCQ questions. Question number 1. It is related to the child educational allowance. State the upper age limit for Divyang children for reimbursement of child educational allowance. 4 options are there: 18 years, 20 years, 22 years, 24 years. ये दिव्यांग चिल्ड्रन बेसिकली डिसेबल चिल्ड्रन और हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए आंसर इज बिट सी 22 ईयर्स. हम जानते हैं कि चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस हम जब लेते हैं तो नॉर्मल चाइल्ड का एज 20 ईयर्स होना चाहिए, अप टू 20 ईयर्स, एंड डिसेबल एंड हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन इट इज़ अप टू 22 ईयर्स. क्लियर? तो आंसर इज बिट सी. अभी पूरा एक्सप्लेनेशन को थोड़ा देख लीजिए चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस so that you can clear and you can get informations about child educational allowance. Eligibility all central government employees without pay limit. सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, ऐसा कोई पे लिमिट नहीं है. इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़, सिविलियन एम्प्लॉयज़ पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट्स, एम्प्लॉयज़ डेप्यूटेड आउटसाइड और ऑन फॉरेन सर्विस इफ टर्म्स ऑफ डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस सो अलाउ. ये एलिजिबिलिटी है. एडमिसिबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन. इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्सीड्स 2 as a result of second birth resulting in twins or multiple births, assistance shall be admissible for all the children. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए है. यदि सेकेंड बार्थ में सपोज ट्विंस और मल्टीपल बार्थ्स केस आता है तब इस केस में चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस मिलेगा. The assistance will also be admissible for the children born out of the first instance of failure of sterilization operation beyond the usual 2 children norm. Suppose 2 children के बाद यदि स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन फेलियर होता है और उसके बाद एक चाइल्ड आ जाता है तो वो भी इंक्लूड होगा. उसके लिए भी चाइल्ड एजुकेशनल असिस्टेंस फैसिलिटी मिलेगा. और बेसिकली 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन के लिए है. और सेकेंड बार्थ में ट्विंस और मल्टीपल बार्थ केस में चाइल्ड एजुकेशनल असिस्टेंस मिलेगा. और आफ्टर 2 चाइल्ड इफ द स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन इज फेल्योर एंड उसके बाद जो चाइल्ड आता है उसके लिए भी चाइल्ड एजुकेशनल असिस्टेंस मिलेगा. थोड़ा एज लिमिट देखेंगे. देयर इज़ नो मिनिमम एज फॉर CA. ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस के लिए कोई मिनिमम एज नहीं है. नॉर्मल चाइल्ड अप टू 20 ईयर्स
और दिव्यांग चिल्ड्रन बेसिकली डिसेबल एंड हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन इट इज़ अप टू 22 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है क्वेश्चन आगे में। स्टैंडर्ड देखेंगे, CA इज एडमिसिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग फ्रॉम 2 क्लासेस बिफोर क्लास 1 LKG एंड UKG टू 12th स्टैंडर्ड, बेसिकली नर्सरी टू 12th स्टैंडर्ड। क्लियर, CA चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस फैसिलिटी मिलेगा। If the child pursues course polytechnic diploma ITI after passing class 10, then no assistance has been claimed in respect of the child for studies in 11th and 12th standards। यदि स्टैंडर्ड 10 के बाद चाइल्ड पॉलीटेक्निक डिप्लोमा ITI में एडमिशन लेता है तो उस केस में उसको चाइल्ड एजुकेशनल असिस्टेंस उसके लिए लिया जाता है। तब 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए अगेन चाइल्ड एजुकेशनल असिस्टेंस नहीं मिलेगा। The assistance CA or hostel subsidy can be availed for children from class nursery to standard 12, including classes 11 and 12 held by junior colleges or schools affiliated to universities or boards of education। यदि 11 and 12 कोई junior colleges में यदि child pursue career basically in junior colleges for standard 11 and standard 12 और इन schools affiliated to universities or boards of education, उनके लिए भी CEA लिया जा सकता है। करेस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस लर्निंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि चाइल्ड परस्यू कोर्स बेसिकली इन डिस्टेंस लर्निंग और इन करेस्पॉन्डेंस कोर्स, उसके लिए भी CA अलाउ होगा। CA इज अलाउड। रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन केस ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन ए नर्सरी, प्राइमरी और मिडिल लेवल स्कूल नॉट अफिलिएटेड टू ए बोर्ड ऑफ एजुकेशन, रीइंबर्समेंट शैल बी अलाउड। नर्सरी टू मिडिल स्कूल आपको रिमेंबर करना है, नर्सरी टू मिडिल स्कूल यदि इट इज़ नॉट अफिलिएटेड टू ए बोर्ड ऑफ एजुकेशन रीइंबर्समेंट मिलेगा, मगर यहाँ पर वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। इफ द स्कूल इज रिकॉग्नाइज्ड, ए गवर्नमेंट स्कूल और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेदर गवर्नमेंट एडेड और नॉट, रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, UT एडमिनिस्ट्रेशन और यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल अथॉरिटी फॉर द एरिया। तो यहाँ पर बहुत इजी है, आपको याद रखना है नर्सरी टू मिडिल लेवल स्कूल यदि उसको एफिलिएशन नहीं मिला है, ओके, CA रिम्बर्समेंट मिलेगा, मगर वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड ओके बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, UT एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल अथॉरिटी फॉर द एरिया। Whether institution recognized or not, it is related to the Divyang children, basically disabled or handicapped children, in an institution aided or approved by the central or state government or UT administration, or whose fees are approved by any of these authorities. Reimbursement of CA shall be allowed whether the institution is recognized or not. For Divyang children, whether the institution is recognized or not, clear, but the fees must be approved by the appropriate authorities of central state government or UT administration। तो इस केस में CA चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस रीइंबर्समेंट होगा। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन नहीं चाहिए, मगर फीस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और UT एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज़ बेसिकली फॉर द दिव्यांग बेसिकली डिसेबल और हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। Next one, CG employees who are citizens of Nepal or Bhutan। यदि citizens of Nepal or Bhutan, now they are working in our central government departments, तो उनका चाइल्ड के लिए भी CA रिइंबर्समेंट होगा। तो क्या रूल है? Children of these employees are studying in their native place, reimbursement of CA allowed if certificate is obtained from the concerned Indian mission that the institution is recognized by the educational authority having jurisdiction over that area। इस केस में ऐसा कोई citizen of Nepal and citizen of Bhutan, they are working in our central government departments and their children's pursue their study basically in their native area, and in this case they must obtain certificate। उनको एक सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है from the concerned Indian mission, ओके और वहाँ पर कंफर्म होना है कि वो इंस्टीट्यूशन एक्चुअली
that institution is recognized by the educational authority having jurisdiction over that area, right? No connection of CA or hostel subsidy with the performance of the child. The reimbursement of CA or hostel subsidy shall have no nexus with the performance of the child in the class. That is, even if the child fails in a particular class, the reimbursement shall not be stopped. यदि चाइल्ड एक पर्टिकुलर क्लास में फेल होता है तभी भी उसको इसके लिए CA रिइम्बर्समेंट होगा। तो इसमें जो CA रिइम्बर्समेंट होता है वो चाइल्ड का परफॉर्मेंस को लेकर नहीं होता है। यदि चाइल्ड पर्टिकुलर क्लास में फेल होता है तो उसको भी उसके लिए भी CA रिइम्बर्स होगा। सपोज इस ईयर वो स्टैंडर्ड 6 में है, वो फेल हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर वो स्टैंडर्ड 6 कंटिन्यू करेगा, तो ये दोनों के लिए ओके। तो यहाँ पर CA बंद नहीं होगा, CA रिइम्बर्समेंट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्लीकेबिलिटी ऑफ CA, एम्प्लॉई इज ऑन ड्यूटी, एम्प्लॉई इज ऑन लीव इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, अंडर सस्पेंशन, ये सभी केस में CA रिइम्बर्समेंट होगा। मगर चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस रिइम्बर्समेंट नहीं होगा डाइज नॉन पीरियड में। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली डाइज नॉन जो अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड होता है, और वो अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कंडोन नहीं करता है, तो उस केस में जो अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड को डाइज नॉन डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उस पीरियड के लिए CA नहीं मिलेगा। तो इसको याद रखना है। डेथ ऑफ एन एम्प्लॉई, द असिस्टेंस विल कंटिन्यू टू बी एडमिसिबल in respect of his or her children till such time the employee would have actually received the same, but the condition is spouse is not employed with the central or state government, semi-government organization, PSU, autonomous body etc. and other conditions are fulfilled. इस केस में यदि कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है और उसका स्पाउस जैसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, कोई सेमी गवर्नमेंट, PSU, ऑटोनोमस बॉडी में काम नहीं करेगा, उस केस में एज यूजुअल मैनर अप टू स्टैंडर्ड 12 तक एज यूजुअल मैनर वो चाइल्ड के लिए CA रिइम्बर्समेंट होगा। क्लियर? एंड द पेमेंट शैल बी मेड बाय द ऑफिस इन व्हिच द गवर्नमेंट सर्वेंट वाज वर्किंग प्रायर टू हिज डेथ। डेथ के पहले जो ऑफिस में काम कर रहा था कंसर्न एम्प्लॉय जिसका डेथ हो गया, वही ऑफिस से CA रिइम्बर्समेंट होगा। तो एज यूजुअल मैनर मिलेगा अप टू स्टैंडर्ड 12, राइट। सीजेस टू बी गवर्नमेंट सर्वेंट, कब CEA बंद हो जाएगा? ड्यू टू रिटायरमेंट, डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, ये सब केस में CEA बंद हो जाएगा। अबव ऑल दिस थिंग्स ऑकर इन द मिडिल ऑफ द एकेडमिक ईयर। यदि चाइल्ड एकेडमिक ईयर के मिडिल में है और कंसर्न एम्प्लॉई को डिस्चार्ज कर दिया गया, कि कंसर्न एम्प्लॉई का रिटायरमेंट हो गया, कि उसको डिसमिस कर दिया गया, कि इसको रिमूव कर दिया गया, तो उस केस में बेसिकली इट इज क्लियरली मेंशन है, अबव ऑल दिस थिंग्स ऑकर इन द मिडिल ऑफ द एकेडमिक ईयर द असिस्टेंस बेसिकली CA और हॉस्टल सब्सिडी विल बी अवेलेबल टिल द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। ओके, एकेडमिक एंड ईयर तक वहाँ पर जो 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रेन वो उनका जो स्टडी है वो कंटिन्यू होगा और उसी ऑफिस से CA रिइम्बर्स होगा। इन केस ऑफ बोथ द पेरेंट्स और गवर्नमेंट सर्वेंट्स, यदि दोनों फादर मदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं तो उस केस में ओनली वन ऑफ देम कैन अवेल रिइम्बर्समेंट ऑफ CA और हॉस्टल सब्सिडी। तो दोनों से एक ही को CA, it means only one can reimburse the CA, right, or hostel subsidy. Claiming of CA and hostel subsidy both claimed simultaneously or concurrently, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मिलेगा। तो CA मिलेगा और हॉस्टल सब्सिडी मिलेगा। यदि चाइल्ड बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटीज़ में है, बेसिकली हॉस्टल में है, तो जो हॉस्टल का जो एक्सपेंडिचर है बोर्डिंग लॉजिंग के लिए वो भी रिइम्बर्स होगा। तो एज यूजुअल मैनर जो CA है, जो जैसे डे बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ पर एज यूजुअल मैनर चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस रिइम्बर्स होगा। तो दोनों कंकरेंटली रिइम्बर्स होगा, राइट। थोड़ा रेट को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो बेसिकली चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, 7th कमीशन के बाद 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। ₹2250 फॉर मंथ फॉर चाइल्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंसेस। ओके, फॉर पर मंथ एक्चुअली 2250 रीइंबर्स होगा। तो एक चाइल्ड के लिए 27,000 ईयरली रीइंबर्स होगा, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2250 इंटू 12, वो 27,000 आएगा। मगर दिव्यांग चिल्ड्रन वो डबल हो जाएगा, जो 27,000 है वो 54,000 हो जाएगा, और फिर जब 54,000 हो जाएगा तब मंथली 4,500 आ जाएगा, वही डबल हो जाएगा। नॉर्मल चाइल्ड के लिए पर मंथ रीइंबर्स होता था 2250, और डिसेबल चिल्ड्रन के लिए वो हो जाएगा 4,500। नॉर्मल चाइल्ड के लिए 27,000 ईयरली रीइंबर्स होगा, और दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए 54,000 रीइंबर्स होगा। तो ये जो अबव रेट्स है, जब DA 50% हो जाएगा तब ये जो रेट है वो 25% उसमें हाइक हो जाएगा। द अबव रेट शुड बी ऑटोमेटिकली रेज्ड बाय 25% एवरी टाइम द DA इन द रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर गोज अप बाय 50%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर CA, इफ द चाइल्ड इज एडमिटेड इन द सेम क्लास इन अनदर स्कूल। सपोज अभी स्टैंडर्ड 6 में है, कंसर्न एम्प्लॉय ट्रांसफर हो गया, अभी यहाँ पर स्टैंडर्ड 6 सपोज पास हो गया चाइल्ड, और फिर वो ट्रांसफर होके और एक स्कूल में वही स्टैंडर्ड 6 में कंटिन्यू करेगा, तब वहाँ पर उसको CA रिम्बर्स नहीं होगा। तो सेम क्लास में अब वो चाइल्ड फेल हो जाता है, वही क्लास में रह जाता है, CA रिम्बर्स होगा। मगर यहाँ पर अभी पास हो गया, ओके, वो और एक स्कूल में जाकर उसी क्लास में कंटिन्यू किया, तब CA रिम्बर्स नहीं होगा। तो सेम थिंग इट इज रिटन हियर, इफ द चाइल्ड इज एडमिटेड इन द सेम क्लास इन अनदर स्कूल, although the child has passed out of the same class in previous school, CA shall not be admissible. डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए क्लेमिंग चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस? सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कंफर्मिंग दैट द चाइल्ड स्टडीड इन द स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। हम प्रीवियस एकेडमिक ईयर के लिए हम CA रिम्बर्स के लिए हम अप्रोच करते हैं, तो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एक सर्टिफिकेट देता है, और उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि बच्चा इस क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड, अदरवाइज सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रिपोर्ट कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी दे सकते हो, और सेल्फ अटेस्टेड फी रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग ई रिसिप्ट्स ऑल्सो इन केस ऑफ सर्टिफिकेट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड। यदि सर्टिफिकेट ऑब्टेन नहीं कर रहे हो, यदि सर्टिफिकेट हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रिपोर्ट कार्ड दे सकते हैं, और उसका जो सेल्फ अटेस्टेड फी रिसिप्ट्स है इंक्लूडिंग ई रिसिप्ट्स वो भी दे सकते हैं, राइट। अभी हॉस्टल सब्सिडी को देखेंगे, ये तो चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस के ऊपर हो गया। अभी रेट ऑफ हॉस्टल सब्सिडी, यदि चाइल्ड हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल का जो एक्सपेंडिचर है, बोर्डिंग लॉजिंग के लिए जो एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंस हो रहा है, वो भी रीइंबर्स होगा। इट इज ऑल्सो इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017, पर मंथ 6,750 and yearly 81,000. The above ceiling would be automatically raised by 25% every time the DA in the revised pay structure goes up by 50%. जो ये जो रेट है वो भी 20% बढ़ जाए, 25% बढ़ जाएगा जब DA 50% हो जाएगा। और ये यहाँ पर याद रखना है, जो हॉस्टल एक्सपेंडिचर के लिए पर मंथ में रीइंबर्समेंट मिलेगा 6,750, ऐसे ईयरली 81,000 मिलेगा। तो वहाँ पर तो 27,000 मिलेगा, उसके अलावा ये 81,000 हॉस्टल एक्सपेंडिचर के लिए मिलेगा, राइट। कंडीशन फॉर हॉस्टल सब्सिडी इज एप्लीकेबल ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड स्टडिंग इन ए रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड एटलीस्ट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द रेसिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो हॉस्टल सब्सिडी के लिए कंडीशन है, जो रेसिडेंस से जो रेसिडेंशियल स्कूल है वो इट मस्ट बी मोर देन 50 किलोमीटर्स, ओके, 50 एटलीस्ट 50 किलोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए जो रेसिडेंशियल स्कूल है फ्रॉम द रेसिडेंस ऑफ द कंसर्न एम्प्लॉय, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है। विद इन 50 किलोमीटर्स, सपोज रेसिडेंशियल स्कूल इज विद इन 50 किलोमीटर फ्रॉम द रेसिडेंस, देन यहाँ पर हॉस्टल सब्सिडी के लिए रीइंबर्समेंट नहीं होगा, तो एटलीस्ट 50 किलोमीटर्स होना चाहिए।
डॉक्यूमेंट्स वैसे ही सबमिट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कन्फर्मिंग दैट द चाइल्ड स्टडीड इन द स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। वैसे ही सर्टिफिकेट लेना है एंड मेंशनिंग द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट टुवर्ड्स लजिंग एंड बोर्डिंग इन द रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ये भी मेंशन होना चाहिए कि बोर्डिंग एंड लजिंग के लिए इतना एक्सपेंडिचर किया गया है ओके चाइल्ड के लिए, वो भी सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए। क्लेमिंग ऑफ सी एंड हॉस्टल सब्सिडी इन फाइनेंशियल ईयर एक बार होता है ईयरली। द रिइंबर्समेंट विल बी अलाउड जस्ट वंस ए ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सी ए 27,000 मिलेगा और यहाँ पर जो हॉस्टल सब्सिडी वो भी 81,000 मिलेगा। तो दोनों 27,000 81,000 राइट। ट्रैवल अलाउंस फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग आउटसाइड हेडक्वार्टर्स, second class fare by rail at student concessional rate between the nearest railway stations if the places are connected by rail, fare by ordinary bus or lowest class in steamer if the places are not connected by rail। ट्रैवल अलाउंस भी टीए जो फैसिलिटी है चिल्ड्रन के लिए भी मिल सकता है यदि चाइल्ड स्टडिंग इन आउटसाइड ओके। ये दोनों चीज़ को भी याद रखना है ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को चलेंगे। टू अवेल एजुकेशनल अलाउंस फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, what is the validity period of a disability certificate in cases where disability is temporary। यदि disability temporary है तो वहाँ पर तो disability certificate चाहिए ओके। दिव्यांग चिल्ड्रेन, डिसेबल चिल्ड्रेन, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन के लिए हम CA रीइंबर्स करेंगे तो हमको सर्टिफिकेट सबमिट करना है। तो हम तो जानते हैं मिनिमम डिसेबिलिटी 40% होना चाहिए। यदि डिसेबिलिटी टेम्पोररी है तो सर्टिफिकेट 5 ईयर्स के लिए इशू होता है नहीं कि। तो यहाँ पर वही है टू अवेल एजुकेशनल अलाउंस फॉर ए डिसेबल्ड चिल्ड्रन व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केसेस वेयर डिसेबिलिटी इज टेम्पररी। तो यहाँ पर 5 ईयर्स के लिए एक्चुअली टेम्पररी, यदि डिसेबिलिटी टेम्पररी होता है तो 5 ईयर्स के लिए वो सर्टिफिकेट बेसिकली एलिजिबल होता है राइट। आंसर इज बिट बी। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग सिचुएशंस व्हेन विल ए गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर CA। मैं अभी बताया था कि डायजनन पीरियड में ओके जब कंसर्न एम्प्लॉई जो अनऑथराइज एब्सेंस होता है, लीव अथॉरिटी का परमिशन नहीं लिया है और एब्सेंट हो जाता है राइट, तब पीरियड को डायजनन डिक्लेयर कर दिया जाता है। वो डायजनन पीरियड में एक्चुअली CA एडमिसिबल नहीं होगा। तो अभी आंसर हमको मिल गया कि पीरियड ट्रीटेड एज डायजनन, इसके लिए CA द कंसर्न एम्प्लॉई एंटाइटल नहीं है ओके चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस के लिए। तो आंसर इज बिट C। चलो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा LTC के ऊपर है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स लीव ट्रैवल कंसेशन के ऊपर है। गवर्नमेंट सर्वेंट का होम टाउन इज इन न्यू दिल्ली, हिज हेडक्वार्टर इज इन भुवनेश्वर। उसका जो जॉब है, जॉब का जो हेडक्वार्टर है वो भुवनेश्वर है बट वो कटक में रहता है, बट रिजाइडिंग इन कटक। 3 ऑप्शन है, होम टाउन न्यू दिल्ली में, उसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर एंड वो रहता है कटक में। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस हाउ विल हीज क्लेम फॉर होम टाउन LTC बी रेगुलेटेड। तो यहाँ पर हम जानते हैं जो रेस्ट्रिक्शन है बेसिकली हेडक्वार्टर टू होम टाउन, जो LTC के लिए जो रीइंबर्समेंट होगा इस कंडीशन में हमारा हेडक्वार्टर टू होम टाउन होगा, उससे कम है मिलेगा नहीं तो मैक्सिमम कितना मिलेगा फ्रॉम हेडक्वार्टर टू होम टाउन। तो अभी ऑप्शन 4 में देख लीजिए तो बेसिकली हिज क्लेम 4 ऑप्शंस है। हिज क्लेम विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट एडमिसिबल फ्रॉम कटक टू न्यू दिल्ली, हिज क्लेम विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट एडमिसिबल फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली। ए बीट बी जो है करेक्ट है क्योंकि भुवनेश्वर हेडक्वार्टर है, उसका होम टाउन न्यू दिल्ली है। तो यहाँ पर जो क्लेम रेस्ट्रिक्शन है वो रहेगा फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली। हाँ, उससे कम वो एक्सपेंस करता है तो कम जो है जो लेस है मिलेगा। दोनों को कंपेयर कर दीजिए। क्लियर। आप जब बिल सबमिट करते हो तो 2 ऑप्शन लिया जाता है। बेसिकली जो मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन है वो बेसिकली फ्रॉम हेडक्वार्टर टू होम टाउन और आप कितना एक्सपेंस किया ट्रैवलिंग में ओके। तो मैक्सिमम कितना मिलेगा ना फ्रॉम जो आप क्लेम करोगे, जो मैक्सिमम मिलेगा फ्रॉम
कितना है, फ्रॉम हेडक्वार्टर टू होम टाउन। उससे कम होता है तो वो जो कम है वो रिइंबर्समेंट होगा, राइट। तो आंसर इज बिट बी। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्लॉक टू व्हिच द एलटीसी इज टू बी डेबिटेड इज डिसाइडेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कब हमारा जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक है 4 ईयर ब्लॉक, उसको स्प्लिट अप कर दिया जाता है 2 ईयर्स, एक में होम टाउन होगा तो एक में ऑल इंडिया टूर होगा, नहीं कि। तो इस केस में क्या है, जब एलटीसी कब डेबिट होता है, डेट ऑफ इंटीमेशन टू ऑफिस, डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम, डेट ऑफ आउटवर्ड जर्नी, 4 ऑप्शन है। तो डेट ऑफ आउटवर्ड जर्नी, जिस डेट में आप जर्नी स्टार्ट किया एलटीसी के लिए, उसी डेट में जिस ब्लॉक के लिए आप जा रहे हो, उस सपोज एक 4 ईयर ब्लॉक, फास्ट ब्लॉक जो 2 ईयर से आप जा रहे हो, तो जब आउटवर्ड जर्नी जिस डेट में आपका आउटवर्ड जर्नी स्टार्ट है, उसी डेट में आपका वो डेबिट होगा, राइट। कि ये पर्टिकुलर 2 ईयर्स ब्लॉक के लिए आप एलटीसी ले लिया। ओके, द ब्लॉक टू इज द एलटीसी टू बी डेबिटेड इज डिसाइडेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, द डेट ऑफ आउटवर्ड जर्नी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर इज बिट डी। चलो क्वेश्चन नंबर 6, चूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन आर एलिजिबल फॉर अवेलिंग एलटीसी। तो यहाँ पर चिल्ड्रन के लिए एलटीसी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, 2 स्टेप चिल्ड्रन होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, 2 अनमैरिड चिल्ड्रन टेकन एज वार्ड्स बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, 2 सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी आएगा, ये सभी चाइल्ड अवेल करेंगे एलटीसी के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ एलटीसी मीन स्पाउस, फर्स्ट स्पाउस आएगा। यहाँ पर डिपेंडेंसी कंडीशन लागू नहीं होगा स्पाउस के लिए, ये भी एक 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। द डिपेंडेंसी कंडीशन डज नॉट अप्लाई ऑन स्पाउस। नेक्स्ट है 2 सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन और स्टेप चिल्ड्रन होली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय वेदर और नॉट रिजाइडिंग विथ एम्प्लॉय। तो 2 सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन और 2 स्टेप चिल्ड्रन वो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय के साथ रहते हैं कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन, मैरिड डॉटर्स डाइवोर्स्ड, अबंडन्ड और सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, ओके, एंड widowed daughters and residing with and wholly dependent on the employee, ये भी अवेल करेंगे एलटीसी। नेक्स्ट, पेरेंट्स एंड और स्टेप मदर स्टेप फादर होली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय, पेरेंट्स और भी स्टेप मदर स्टेप फादर वो भी, मगर वो डिपेंड करते हैं एम्प्लॉय में के ऊपर। ओनली डिपेंडेंट कंडीशन स्पाउस केस में नहीं रहेगा, अदर केस में रहेगा, ठीक है। पेरेंट्स हो गया। नेक्स्ट, अनमैरिड माइनर ब्रदर्स and unmarried or divorced, abandoned or separated from their husbands or widowed sisters residing with and wholly dependent on the employee, ये सब आ जाएंगे। unmarried minor brothers, unmarried sisters कि divorced, abandoned or separated from their husbands or widowed sisters residing with and wholly dependent on the employee। और यहाँ पर कंडीशन है provided their father is either not alive or himself dependent on the employee, ठीक है। यहाँ पर कुछ नोट्स देखेंगे। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2008, 1 September 2008, ए पर्सन इज सेड टू बी होली डिपेंडेंट इफ हिज इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ मिनिमम पेंशन इन गवर्नमेंट ₹9,000 एंड डियरनेस रिलीफ देयर ऑन। ये डिपेंडेंसी कंडीशन में आता है, आपको याद रखना है कि मिनिमम 9,000 प्लस उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ। ओनली 1 वाइफ इज इंक्लूडेड इन द टर्म फैमिली फॉर एलटीसी रूल्स, okay, only 1 wife is included. However, if a government servant has 2 legally wedded wives, two legally wedded wives, and the second marriage is with specific permission of the government, the second wife shall also be included in the definition of family. यदि सेकेंड मैरिज होता है गवर्नमेंट परमिशन से और वो लीगल होता है, तब वो सेकेंड वाइफ भी एंटाइटल है एलटीसी के लिए। Where the number of children exceeds 2 as a result of second child birth resulting in multiple births, यदि सेकेंड बर्थ में वो मल्टीपल बर्थ्स होता है कि ट्विंस की मोर देन 2 चाइल्ड, जैसे मल्टीपल बर्थ्स होता है, वो भी एलिजिबल है। नेक्स्ट नोट, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द पेरेंट्स और स्टेप पेरेंट्स और स्पाउस और चिल्ड्रन टू रिजाइड विद द गवर्नमेंट सर्वेंट so as to be eligible for the concession. The concession in their cases shall however be restricted to the actual distance travelled or the distance between the headquarters of the government servant and the hometown or place of visit whichever is less. तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि वो सब एम्प्लॉई के साथ ही रहेंगे, तो कहाँ पर भी रह सकते हैं, मगर वो जो अब रिइंबर्समेंट क्लेम होगा
तो जो रेस्ट्रिक्शन होगा बेसिकली फ्रॉम हेडक्वार्टर टू होम टाउन एंड होम टाउन टू हेडक्वार्टर, उसके हिसाब से क्लेम रेस्ट्रिक्शन होगा। चिल्ड्रेन ऑफ सिस्टर्स हु आर डाइवोर्स्ड, अबंडन्ड, सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स और विडोड आर नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म फैमिली। ओके, जो डाइवोर्स्ड सिस्टर है कि अबंडन्ड सिस्टर है कि जो सिस्टर्स बेसिकली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स और जो विडोड सिस्टर्स, उनका चाइल्ड को एलटीसी, उनका चाइल्ड के लिए एलटीसी अवेल नहीं किया जा सकता है। ओके, वो फैमिली में इंक्लूड नहीं है। तो ये सब चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स रिलेटेड टू द CCS पेंशन रूल्स 1972, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स कैन नॉट बी टर्म्ड एज टर्मिनल बेनिफिट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पर्समेंट ऑफ रिटायरमेंट ड्यूज ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। जो रिटायरमेंट ड्यूज होता है वो जो टर्मिनल बेनिफिट है उसमें ग्रेचुइटी आता है, एनकैशमेंट ऑफ लीव जैसे 300 EL एंड HPL, मैक्सिमम 300 EL एंड HPL कैन बी एनकैश्ड, ग्रेचुइटी अभी जैसे मैक्सिमम है 20 लाख है ग्रेचुइटी, पेंशन एंड कम्यूटेशन पेंशन, ये सब टर्मिनल बेनिफिट में आता है। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम वो टर्मिनल बेनिफिट में नहीं आएगा। तो आंसर इज बिट सी, ग्रेचुइटी आएगा, एनकैशमेंट ऑफ लीव आएगा, पेंशन एंड कम्यूटेशन पेंशन, ये सब टर्मिनल बेनिफिट में आता है। जब एक कंसर्न एम्प्लॉय रिटायर होता है ये सब टर्मिनल बेनिफिट में आता है, मगर CGEIS नहीं आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम। तो आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ विल द पेंशनरी बेनिफिट्स बी रेगुलेटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस। यदि कंसर्न एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया जाता है और रिमूव कर दिया जाता है तो जो पेंशनरी बेनिफिट्स है वो फोरफिट हो जाता है। बेसिकली पेंशन एंड ग्रेचुइटी वो फोरफिट हो जाता है। ओके, यहाँ पर देखिए ऑप्शन, पेंशन एंड ग्रेचुइटी विल बी फोरफिटेड, ग्रेचुइटी अलोन शैल बी फोरफिटेड, पेंशन शैल बी फोरफिटेड, पेंशन एंड ग्रेचुइटी बोथ एट ए रेट नॉट मोर देन फुल कंपेंसेशन पेंशन शैल बी ग्रांटेड। तो यहाँ पर जो आंसर है बिट ए है, क्योंकि जब कंसर्न एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो बेसिकली बुक पेंशनरी बेनिफिट के ऊपर पूछा है, तो पेंशन एंड ग्रेचुइटी विल बी फोरफिटेड। ठीक है, क्योंकि डिसमिसल और रिमूवल से क्या है, जो पास्ट सर्विस वो फोरफिट हो जाता है। तो पास्ट सर्विस फोरफिट हो जाते तो कैसे पेंशन एंड ग्रेचुइटी मिलेगा, वो भी फोरफिट हो जाएगा। आंसर इज बिट ए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब्ड टू द अथॉरिटी competent to give notice to a government servant in permanent employment before his services are dispensed with on the abolition of his permanent post। कभी कभी क्या है, एक कंसर्न एम्प्लॉय परमानेंट पोस्ट में है और वो पोस्ट गवर्नमेंट चाहता है कि वो पोस्ट अबोलिश होगा। जब वो पोस्ट अबोलिश होगा तो जिस पोस्ट में कंसर्न एम्प्लॉय था तो उसके लिए एक इक्विवेलेंट पोस्ट उसके लिए नहीं है, तो उसको 3 months बिफोर एक नोटिस दे दिया जाता है कि अब ये पोस्ट को अबोलिश कर दिया जाएगा और उसका जो इक्विवेलेंट पोस्ट नहीं है तो आपको रिटायरमेंट लेना है, अदरवाइज आप लोअर पोस्ट में जाओगे। तो एम्प्लॉय तो लोअर पोस्ट को नहीं जाएगा, राइट? तो वो रिटायरमेंट ले जाता है और उस रिटायरमेंट में उसको कॉम्पेंसेशन पेंशन मिलता है, राइट? उसको कॉम्पेंसेशन पेंशन मिलेगा। आप देख लीजिए CCS पेंशन रूल्स 1972 रूल 39 में है, कॉम्पेंसेशन पेंशन मिलेगा उसको। ओके, क्योंकि पोस्ट अबोलिश हो गया, इक्विवेलेंट जो पोस्ट अबोलिश हो रहा है उसका इक्विवेलेंट पोस्ट नहीं है, एम्प्लॉय तो लोअर पोस्ट को नहीं जाएगा, तो उस केस में उसका रिटायरमेंट हो जाता है, मगर 3 months बिफोर उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है एम्प्लॉय को उसके बारे में। तो यहाँ पर आंसर आपको मिल गया, आंसर इज बीट सी 3 months, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 10 को चलेंगे। वेदर द फैमिली कैन बी गिवन द बेनिफिट ऑफ 40% कम्यूटेशन इफ ए पेंशनर डाइज बिफोर एक्सरसाइजिंग ऑप्शन। हम जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद विदिन 1 year पेंशन को कम्यूट करना है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। विदिन 1 year आफ्टर रिटायरमेंट इफ द पेंशनर वांट टू कम्यूट द पेंशन
एंड मैक्सिमम कम्यूटेशन इज 40%, आप जानते हो, तो मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पर नहीं चाहिए। मगर उसी में क्या है ना, पेंशनर का डेथ हो जाता है, क्या उसका फैमिली को, उसका फैमिली मेंबर को अलाउ किया जाएगा पेंशन को कम्यूट करने के लिए? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है एस नो, डिपेंड अपॉन द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, नॉन ऑफ द अबव, यहाँ पर नहीं मिलेगा, आंसर इज नो। यदि ऑप्शन है कि जिस डेट में आपका रिटायरमेंट होता है उससे आप 1 ईयर के अंदर आप पेंशन को कम्यूट कर सकते हो, तो मैक्सिमम पेंशन कितना कम्यूट होगा ना, 40% होगा। सेंट्रल सिविल सर्विसेज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981 है, उसमें क्लियरली मेंशन है यदि वो रिटायरमेंट के बाद विद इन 1 ईयर, सपोज वो ऑप्शन नहीं दिया है कंसर्न एम्प्लॉयर, उसका डेथ हो जाता है, उसके बाद उसका फैमिली मेंबर को अलाउ नहीं किया जाएगा पेंशन को कम्यूट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर आंसर जो है बिट बी नो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को चलेंगे। मेडिकल बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इन केस ऑफ डैश, कम्यूटेशन ऑफ इनवैलिड पेंशन, इन ऑल केसेस ऑफ सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, बीट सी बोथ ए एंड बी, बीट डी नॉन ऑफ द अबव। तो मेडिकल बोर्ड केस में यहाँ पर आंसर बीट सी होगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि इनवैलिड पेंशन आप देख लीजिए, सीसीएस पेंशन रूल 1972 रूल 38 देख लीजिए, इनवैलिड पेंशन मिलेगा यदि कंसर्न एम्प्लॉय फिजिकली अनफिट है काम करने के लिए, तब उसको इनवैलिड पेंशन मिलता है। और ये जो इनवैलिड पेंशन को जब कम्यूटेशन ऑफ इनवैलिड पेंशन, तब मेडिकल बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूट होगा, एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा इनवैलिड पेंशन को कम्यूट करने के लिए। और एक है यदि सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, क्योंकि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन यदि आपका रिटायरमेंट के बाद विद इन 1 ईयर आप कम्यूट करना चाहते हो तो वहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मगर आफ्टर 1 ईयर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन में मेडिकल बोर्ड का जरूरत नहीं, मगर सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन, सेकेंड इन ऑल केसेस ऑफ सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ऑल केसेस ऑफ सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के लिए सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन आता है, तब फिर मेडिकल बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवैलिड पेंशन के लिए तो होगा, आप इनवैलिड पेंशन को कम्यूट करना चाहते हो तो मेडिकल बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, और इन ऑल केसेस ऑफ सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन वहाँ पर भी मेडिकल बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। ठीक है, ये दोनों आंसर करेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर इज बिट सी, बोथ ए एंड बी। चलो क्वेश्चन नंबर 12 अंडर रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर 7th पे कमीशन, फैमिली पेंशन इज 30% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ डैश एंड मैक्सिमम डैश। हम जानते हैं कि नॉर्मल जो पेंशन है फैमिली पेंशन वो 30% होता है, तो यहाँ पर मिनिमम 9,000 है, मैक्सिमम 75,000 होगा, क्योंकि अभी जो मैक्सिमम बेसिक पे है वो 2,50,000 है 7th पे कमीशन में, मैक्सिमम 2,50,000, उसका 30% कितना हो रहा है 75,000, तो उसके हिसाब से मिनिमम 9,000 होगा फैमिली पेंशन एंड मैक्सिमम 75,000 होगा। जैसे हम नॉर्मल फैमिली पेंशन को आएंगे, नॉर्मल फैमिली पेंशन बेसिक पे का 30% मिलता है, और आप जानते हो जो पेंशन के लिए जो एमोलूमेंट्स होता है ओनली बेसिक पे होता है, वहाँ पर इसमें डीए इंक्लूड नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर फैमिली पेंशन में नॉर्मली पेंशन जब मिलता है वो 50% होता है, मगर जब बेसिकली पेंशनर का डेथ हो जाता है तब फैमिली पेंशन मिलता है वो बेसिक पे का 30% मिलेगा। तो आंसर इज बिट डी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 13, हु इज कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन परमानेंट एडवांस और इम्प्रेस्ड फॉर मीटिंग डे टू डे कंटिजेंट एंड इमरजेंट एक्सपेंडिचर। ये जनरल फाइनेंशियल रूल के ऊपर है। तो बीट ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बीट बी डीडीओ, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट, कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर सी एंड डी रिपीट हो गया, राइट। तो बीट डी आप नन ऑफ दिस कर दीजिए। तो इस केस में एक एडवांस फंड होता है, जो एडवांस फंड किसके लिए होगा ना, डे टू डे कंटिजेंट एंड बेसिकली इमरजेंसी एक्सपेंडिचर। तो वो जो एडवांस फंड होगा उसको इम्प्रेस्ड कहा जाता है,
तो उसको कौन सैंक्शन करता है? आंसर इज बीट है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको सैंक्शन करता है। एक एडवांस फंड होता है। तो कभी भी कोई कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर होता है कि कोई इमरजेंसी केस में कोई एक्सपेंडिचर होता है, तो उस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सैंक्शन करता है बेसिकली का एडवांस फंड। भाई एडवांस फंड को हम इम्प्रेस्ड बोलेंगे। ये भी एक बार आया था दिल्ली बोर्ड में, जो 2012-13 में जो एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर आंसर बीट ए है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ये भी एक जीएफआर बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ सर्विस बुक्स ऑफ ऑफिशियल्स एंटाइटल्ड टू रिटायरमेंट और टर्मिनल बेनिफिट्स? तो पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ सर्विस बुक्स ऑफ ऑफिशियल्स एंटाइटलमेंट टू रिटायरमेंट और टर्मिनल बेनिफिट्स, तो 2 years आफ्टर इश्यू ऑफ फाइनल पेंशन और ग्रेचुइटी, 3 years आफ्टर इश्यू ऑफ फाइनल पेंशन और ग्रेचुइटी, 4 years आफ्टर इश्यू ऑफ फाइनल पेंशन और ग्रेचुइटी, 5 years आफ्टर इश्यू ऑफ फाइनल पेंशन और ग्रेचुइटी। यहाँ पर जो आंसर है बीट बी है, 3 years आफ्टर इश्यू ऑफ फाइनल पेंशन और ग्रेचुइटी। जो फाइनल पेंशन और ग्रेचुइटी के बाद 3 years तक वो रिटर्न होगा एटलीस्ट। ओके, रिटेंशन ऑफ सर्विस बुक्स ऑफ ऑफिशियल्स बाय द हेड ऑफ द ऑफिस, राइट। तो यहाँ पर आंसर इज बीट बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो और एक जीएफआर के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ पे बिल रजिस्टर्स? हमारा एक पे बिल रजिस्टर्स होता है, हमको मंथली जो पे मिलता है उसका रजिस्टर्स है। तो व्हाट इज द, उसको कितने ईयर्स के लिए रिटर्न किया जाएगा? 4 ऑप्शंस आर देयर, 30 years, 32 years, 35 years, 40 years। आंसर इज बिट सी, 35 years। बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ पे बिल रजिस्टर्स, इट इज फॉर 35 years। चलो क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन इज रिजेक्शन ऑफ ऑल बिल्स, नहीं है बीड्स है। व्हेन इज रिजेक्शन ऑफ ऑल बीड्स जस्टिफाइड? ये थोड़ा एरर हो गया, ये बिल्स नहीं है बीड्स है, BIDS, बीड्स जस्टिफाइड। तो जो बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट होता है, जब प्रोक्योरिंग अथॉरिटी टेंडर इनवाइट करता है और जो भी सप्लायर्स है वो उनका बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो कब उनका बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा? तो वो बिल्स हो गया, वो बीड्स होगा, राइट। चलो, व्हेन ऑल बिड्स मीट द क्राइटेरिया फॉर एवैल्यूएशन ऑफ बिड्स, व्हेन द टेक्निकल बिड्स मीट द मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर, व्हेन बिड्स और प्रपोजल्स आर रेस्पॉन्सिव टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोक्योरमेंट डिवीजन, व्हेन इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग। यहाँ पर आंसर है बिट डी, व्हेन इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग। इफेक्टिव कंपटीशन मीन्स यहाँ पर क्या है? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जो प्राइस कोटेशन, ये सब देखना पड़ता है। और उसमें कुछ गड़बड़ी आता है, उसमें कुछ ऐसा एरोनियस डाटा दे दिया जाता है, तो तब पूरा माने बीड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक है, मगर बहुत कुछ ऑप्शंस है जो बीड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। मगर यहाँ पर एक ऑप्शन आपको याद रखना होगा, व्हेन इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, क्लैरिफिकेशन, रिजेक्शन ऑफ ऑल बिड्स जस्टिफाइड व्हेन इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग। मैं अभी बताया इफेक्टिव कंपटीशन, जैसे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कि आपका जो टेक्निकल बिड, जो कमर्शियल कंडीशंस है, कि ऐसा कोई मशीनरी प्लांट केस में आपका जो टेक्निकल डिटेल्स वो देना है, ये सब उसमें कुछ लैकिंग होता है, तो वो तब बिड को जस्टिफाई नहीं माना जाएगा। ओके, वहाँ पर बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑल बिड्स एंड प्रपोजल्स आर नॉट सब्सटेंशियली रेस्पॉन्सिव टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट। जो प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स में जब बिड इन्वाइट किया जाता है, तब बिड डॉक्यूमेंट एक्चुअली द कंसर्न प्रोक्योरिंग अथॉरिटी वो उसको कुछ बिड डॉक्यूमेंट्स वो एक्चुअली वहाँ पर आप बेसिकली सप्लायर्स को डाउनलोड करना पड़ता है, उसको फिलअप करना पड़ता है। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स सपोज सप्लायर सबमिट नहीं करता है, तब बिड को जस्टिफाई नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर द थर्ड ऑप्शन है, द बिड्स और प्रपोजल्स प्राइस आर सब्सटेंशियली हायर दैट द अपडेटेड कॉस्ट एस्टिमेट और अवेलेबल बजट। तो अवेलेबल बजट के हिसाब से जो प्रोक्योरिंग एंटिटी है, उसका अवेलेबल बजट के हिसाब से जो बिड्स प्राइस है, कि जो प्रपोजल प्राइस है बहुत ज़्यादा है, उस केस में बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जो टेक्निकल प्रपोजल्स है, टेक्निकल प्रपोजल्स कब आता है? जो टेक्निकल डिटेल्स, जब कोई प्लांट्स, मशीनरीज
प्रोक्योरिंग अथॉरिटी वो कोई प्लांट्स परचेज बेसिकली मशीनरी परचेज करना चाहता है, ओके तो उस केस में जब ये मशीन टूल्स इक्विपमेंट्स केस में, तब जो सप्लायर है उसको टेक्निकल डिटेल्स देना पड़ता है। टेक्निकल डिटेल्स को एनालाइज करने के बाद यदि एक मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर नहीं मिलता है तब बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ओके तो नन ऑफ द टेक्निकल प्रपोजल्स मीट द मिनिमम टेक्निकल क्वालिफाइंग स्कोर। एक एवेल्युएशन कमिटी होता है, टेक्निकल एवेल्युएशन कमिटी, वो एवेल्युएट करता है टेक्निकल डिटेल्स को और वो मार्क देते हैं। वो मिनिमम मार्क नहीं देते हैं तब वो क्या है ना, बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ को याद रखना है कब बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग, राइट। चलो नेक्स्ट वन, मेंशन द पर्पज फॉर विच चाइल्ड केयर लीव के ऊपर मैं बताया था। आज का जो वीडियो मेरा था बेसिकली चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस एंड चाइल्ड केयर लीव। अभी कुछ क्वेश्चन से चाइल्ड केयर लीव और उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। मेंशन द पर्पज फॉर विच चाइल्ड केयर लीव कैन बी अप्लाइड फॉर बाय फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट कब चाइल्ड केयर लीव बस CCL अप्लाई करता है? हम जानते हैं कि फॉर फर्स्ट 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन के लिए चाहे CCL मिलेगा, मगर कब अप्लाई किया जाता है? फॉर चाइल्ड बर्थ, इलनेस ऑफ सेल्फ, प्राइवेट ग्राउंड्स, टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन लाइक एग्जामिनेशन एंड इलनेस। जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट है, आंसर इज B, टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन लाइक एग्जामिनेशन एंड इलनेस। हम जानते हैं कि अप टू 18 ईयर्स तक, ठीक है, अप टू 18 ईयर्स तक नॉर्मल चाइल्ड, फॉर 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन अप टू 18 ईयर्स तक फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को CCL मिलेगा और बेसिकली 2 ईयर्स 730 डेज के लिए मिलता है, राइट, मैक्सिमम 730 डेज फॉर 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन। मगर जब वो अप्लाई करेंगे वो किस पर्पज के लिए वो CCL लेना चाहते हैं वो वहाँ पर मेंशन होगा कि सपोज एग्जामिनेशन की, इलनेस की, सिकनेस, ये पर्पज को देखा कर वो CCL ले सकते हैं। तो यहाँ पर है आंसर B। चलो अभी कुछ क्वेश्चन देखने के बाद पूरा उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए डिसेबल्ड चाइल्ड फॉर ग्रांट ऑफ CCL टू ए फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यहाँ पर आपको याद रखना है कि बेसिकली नॉर्मल चाइल्ड के लिए अप टू 18 ईयर्स CCL मिलेगा, मगर जो दिव्यांग चिल्ड्रन है वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन, उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। मगर नॉर्मल चाइल्ड के लिए फॉर 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन अप टू 18 ईयर तक आपको याद रखना है, राइट। मगर दिव्यांग चिल्ड्रन व डिसेबल चिल्ड्रन के लिए ऐसा कुछ एज लिमिट नहीं है। मगर यहाँ पर जो मिनिमम डिसेबिलिटी अब हम जानते हैं कि 40%, तो वही क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए डिसेबल्ड चाइल्ड फॉर ग्रांट ऑफ CCL टू ए फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आंसर इज B, इट इज 40%। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द लीव सैलरी पेबल इन द केसेस ऑफ CCL अवेल्ड बाय वुमेन एम्प्लॉय। तो कैसे लीव सैलरी मिलेगा? हम जानते हैं कि फास्ट 360 तो 730 डेज के लिए मिलता है CCL पूरा एंटायर सर्विस में। फॉर एंटायर सर्विस में 730 डेज मिलेगा और फॉर 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन के लिए, और वहाँ पर चाइल्ड का जो अप टू 18 ईयर्स, मगर डिसेबल चिल्ड्रन ऐसा कुछ एज लिमिट नहीं है। तो जो फास्ट 365 डेज है फर्स्ट ईयर के लिए 100% सैलरी मिलेगा, मगर नेक्स्ट ईयर जो है, सेकेंड ईयर जो है, जो सेकेंड जो 365 डेज होगा उसके लिए 80% सैलरी मिलेगा, राइट। तो आंसर इज बिट D, 100% ऑफ सैलरी फॉर फर्स्ट 365 डेज and 80% फॉर नेक्स्ट 365 डेज, राइट। क्वेश्चन नंबर 20, इन केस ऑफ CCL सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स। CCL चाइल्ड केयर लीव एक सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट भी ले सकता है, सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट भी CCL ले सकता है, सेम फैसिलिटीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। तो ए सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स एन अनमैरिड, विडोर, डाइवोर्सी, ऑल ऑफ द अबव आपको लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट may be an unmarried, may be an widow, and may be a divorcee, all of the above, right.
अभी चलो उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये तो 20 क्वेश्चंस था, पूरा CCL के ऊपर हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कंसेप्ट में व्हेन एम्प्लॉइज हैविंग माइनर चिल्ड्रन बी ग्रांटेड CCL फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 730 days ड्यूरिंग देयर एंटायर सर्विस फॉर टेकिंग केयर ऑफ अप टू 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन। फॉर 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए फॉर एंटायर सर्विस में 730 days के लिए CCL मिलता है। और फॉर 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन वेदर फॉर क्यों मिलता है? फॉर रियरिंग bring forth the children or to look after any of their needs like examination, sickness, etc. CCL extended to single male employee also, same facility, single male employee को भी मिलेगा। Matter of right, CCL cannot be demanded as a matter of right. Under no circumstances can any employee proceed on CCL without prior proper approval of the leave by the competent authority. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कंसर्न फीमेल एम्प्लॉई वो CCL लेता है तो वो प्रायर परमिशन उसको लेना चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का प्रायर परमिशन उनको लेना चाहिए। बिना परमिशन से वो CCL नहीं ले सकता। एडमिसिबिलिटी फॉर अवेलिंग CCL द एज ऑफ द चाइल्ड शुड बी 18 years और बिलो, अभी मैं डिस्कस किया था। और डिसेबल चिल्ड्रन के लिए ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, मगर मिनिमम डिसेबिलिटी 40% होना चाहिए और वहाँ पर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। CCL विल बी अलाउड इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ द चाइल्ड ऑन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू हैंडीकैप एंड ए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डिपेंडेंसी ऑफ द चाइल्ड ऑन द एम्प्लॉय। वहाँ पर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और मिनिमम डिसेबिलिटी 40% है और यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है। पर नॉर्मली जो एज लिमिट है फॉर 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन जो होता है अप टू 18 years। थोड़ा लिमिटेशंस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 year में CCL 3 स्पेल्स के लिए होगा, मगर सिंगल मदर के लिए 6 स्पेल्स होगा। ये बहुत है। CCL may not be granted in more than 3 spells in a calendar year। एक कैलेंडर ईयर में जो मैक्सिमम CCL जो ग्रांट किया जाएगा 3 स्पेल्स में ग्रांट किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं है। मगर सिंगल मदर आपको याद रखना है 6 स्पेल्स होगा कैलेंडर ईयर में, राइट। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है और आएगा भी। फ्रॉम 13th June 2018 CCL may not be granted for a period less than 5 days at a time। ये जो 13 June 2018 में ये मॉडिफाई हुआ कि CCL जो एक स्पेल में जो ग्रांट होगा वो मिनिमम 5 days होगा, 5 days से कम नहीं होगा। जैसे हम कैलेंडर ईयर में 3 स्पेल्स होगा और सिंगल मदर के लिए 6 स्पेल्स होगा, तो 1 स्पेल में मिनिमम जो CCL ग्रांट किया जाएगा 5 days किया जाएगा, राइट। प्रोबेशन पीरियड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। CCL शुड नॉट बी सैंक्शन्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्सेप्ट in cases of certain extreme situations where the leave sanctioning authority is fully satisfied regarding the need of CCL to the probationer. It may also be ensured that the period for which this leave is sanctioned during probation is minimal। तो यहाँ पर एक्चुअली CCL मिलना नहीं चाहिए प्रोबेशन पीरियड में, मगर यदि वो जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी वो सेटिस्फाई होता है कि हाँ प्रोबेशनर को CCL दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से जो CCL दिया जाएगा वो मिनिमम CCL दिया जाएगा। जैसे एंटायर सर्विस में 730 days होता है, ठीक है, मगर प्रोबेशन पीरियड में मिनिमम पीरियड के लिए CCL दिया जाएगा। हम जानते हैं कि जो स्पेल होता है 3 स्पेल्स होता है नॉर्मली, एंड सिंगल मदर के लिए 6 स्पेल्स होता है। तो मगर प्रोबेशन पीरियड में वो फैसिलिटीज़ मिलेगा, मगर वो स्पेल जो नॉर्मल चाइल्ड के लिए 3 स्पेल्स है वो नहीं मिलेगा, कि वो सिंगल मदर के लिए 6 स्पेल वो नहीं मिलेगा, राइट, प्रोबेशन पीरियड में। कॉम्बिनेशन CCL में ऑल्सो भी अलाउड फॉर द 3rd year। 3rd year के लिए भी CCL अलाउ किया जाएगा एंड इट में बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ द काइंड ड्यू। सपोज कुछ लीव है, ऐसा EL है कि HPL है, ओके, 3rd year में लिया जा सकता है। कम्यूटेड लीव अप टू 60 days लिया जा सकता है, कम्यूटेड लीव अप टू 60 days विदाउट सबमिटिंग मेडिकल सर्टिफिकेट। और एक लीव नॉट ड्यू, LND जो है, लीव नॉट ड्यू में मेडिकल सर्टिफिकेट में LND लिया जाता है, और वो जो आगे में जो जैसे HPL नहीं है तब LND लिया जा सकता है, और आगे में जो HPL मिलेगा उससे डेबिट होता है। तो ऐसे मैक्सिमम 1 year विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अभी तो LND जैसे लीव नॉट ड्यू, अभी तो HPL नहीं है, अभी तो EL मिल रहा है। 6th पे कमीशन में HPL क्रेडिट हो रहा था, अभी EL क्रेडिट हो रहा है। तो बेसिकली क्लियर। तो इस केस में क्या है,
थर्ड ईयर के लिए कम्यूटेड लीव अप टू 60 डेज ये याद रखना है। और जो लीव ड्यू है, जैसे आपका जो सर्विस खाते में कुछ लीव है, जैसे ईएल है कि एचपीएल है, वो भी ले सकते हो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। ये मैक्सिमम 1 ईयर, ओके, मैक्सिमम 1 ईयर थर्ड ईयर के लिए ले सकते हो। सीसीएल में भी कंबाइन विथ लीव ऑफ द काइंड, सभी लीव के साथ सीसीएल कंबाइन होगा मगर कैजुअल लीव के साथ नहीं होगा, याद रखना है। सभी प्रकार का लीव ईएल एचपीएल ओके उनके साथ कंबाइन होगा मगर कैजुअल लीव के साथ ये कंबाइन नहीं होगा। सीसीएल पीरियड में एलटीसी लिया जा सकता है, एलटीसी में भी अवेल ड्यूरिंग सीसीएल। और यहाँ पर लीव सैलरी जो मिलेगा, द एम्प्लॉय शैल बी पेड लीव सैलरी इक्वल टू द पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव। जो आपका पे है बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव, जो लीव के पहले जो आपका पे है उसके हिसाब से लीव सैलरी मिलेगा। तो फर्स्ट 365 डेज में 100% मिलेगा मगर सेकेंड 365 डेज में 80% मिलेगा। आपको याद रखना है 730 डेज तो पूरा एंटायर सर्विस में मिलता है फॉर 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन के लिए। तो जो फर्स्ट 365 डेज में 100% सैलरी मिलेगा और जो नेक्स्ट 365 डेज में 80% सैलरी मिलेगा। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है और आगे में आएगा। Applicability, CCL is applicable for members of all India services. It is also applicable to civilian, female industrial employees, defense establishments and other central government establishments with effect from 1st September 2008, 1/9/2008। इसको याद रखना है। जो CCL लागू हुआ चाइल्ड केयर लीव वो 1 सितंबर 2008 से, राइट। फॉरेन ट्रैवल किया जा सकता है मगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन लेने के बाद। अन एम्प्लॉय ऑन सीसीएल में प्रोसीड ऑन फॉरेन ट्रैवल प्रोवाइडेड क्लियरेंस फ्रॉम अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ओके, फॉरेन ट्रैवल लिया जा सकता है मगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन के बाद। इंटरवेनिंग हॉलीडेज लाइक ईएल, जब सीसीएल लिया है और उसके अंदर सपोज कुछ लीव्स आता है तो वो उसमें काउंट हो जाएगा। ओके, उसको सेपरेट नहीं किया जाएगा। जैसे ईएल हम लेते हैं, सपोज हम जब ईएल लिया है उसके अंदर कोई नेशनल हॉलीडे की संडे आता है, वो इट मीन्स ईएल में क्या होगा, इंक्लूड होगा। वैसा ही सीसीएल में जो भी इंटरवेनिंग हॉलीडेज आएगा वो सीसीएल में इंक्लूड होगा। लीव अकाउंट बेसिकली सीसीएल के लिए शाल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट। लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगा मगर सेपरेटली, जैसा ईएल है सेपरेटली सीसीएल मेंशन होगा क्योंकि पूरा एंटायर सर्विस में 730 डेज लेना है तो सीसीएल के लिए अलग मेंशन होगा। हम जानते हैं कि कैलेंडर ईयर में 3 स्पेल्स और ईच स्पेल में मिनिमम 5 डेज नहीं कि, और सिंगल मदर के लिए कैलेंडर ईयर में 6 स्पेल्स और मिनिमम 1 स्पेल में जो है 5 डेज। तो ऐसा तो मेंशन होगा वो सीसीएल के लिए। ओके, इट इज ट्रीटेड लाइक ईएल एंड सैंक्शनड एज पर अप्रूविंग अथॉरिटीज एंड रिकॉर्ड्स केप्ट इन द रजिस्टर। रजिस्टर में भी रिकॉर्ड रहेगा। सीसीएल इज एडमिसिबल टू सिंगल मेल पेरेंट। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, सिंगल मेल पेरेंट को अभी सीसीएल मिलेगा। ये कब से लागू हुआ? 14 दिसंबर 2018, याद रखना है 14 दिसंबर 2018 से लागू हुआ। सिंगल मेल पेरेंट भी ऐसा फैसिलिटी मिल सकता है, सीसीएल फैसिलिटी मिलेगा। लीव ऑफ हेडक्वार्टर, अन एम्प्लॉय ऑन सीसीएल may be permitted to leave headquarters with the prior approval of appropriate competent authority. Headquarter it means जब the concerned female employee want to leave the headquarter तब परमिशन लेना है appropriate authority का, ठीक है। तो ये आज जो टॉपिक था पूरा MCQ में मैं 2 चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज किया, चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस एंड चाइल्ड केयर लीव। कुछ फाइनेंशियल रूल्स के ऊपर, एलटीसी के ऊपर एंड पेंशन रूल्स के ऊपर डिस्कस किया। तो माय फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, वहाँ पर मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। मेरा ग्रुप जो है वहाँ पर गवर्नमेंट रूल गुरु असित है, टेलीग्राम का जो मेरा ग्रुप है और उसमें सभी वीडियो है। ऑल द वीडियोज़ आर अवेलेबल। Okay, you can get on it at any time. So please subscribe my channel Asit Government Rule Guru so that you can get notification in posting time. Thank you and namaskar to all of you.